हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा एप्स एंड वेब पोर्टल्स ऑफ अक्टूबर मंथ। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gain today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes. They are very helpful, and if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say, 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी जल जीवन मिशन की एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। जल जीवन मिशन क्या है? टैप वाटर, जैसे आप यहां देख सकते हैं, टैप वाटर इसका लोगो था, या मोटो मैस्कॉट नहीं, लोगो ही कहेंगे, लोगो था। इसमें क्या था कि जल जीवन मिशन में हर घर जल, जल जीवन मिशन, हर घर जल मतलब हर घर में एक टैप हो जिसमें से टैप वाटर सभी को प्रोवाइड किया जा सके, मतलब लोग वाटर को एक्सेस कर सके यूजिंग टैप। तो ये टैप वाटर की वजह से जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। तो अब एक और मिशन, अभी इसकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। पहली चीज तो ये देखिए, अब क्या लॉन्च हुआ है, इसके साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया। ये एक इनिशिएटिव है कि आप कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉरपोरेशन या कोई भी फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जो लोगों की हेल्प करता है, डोनेट करते हैं लोग, ऐसी कोई भी, चाहे वो इंडिया में रहते हो चाहे कोई बाहर रहते हो, मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अगर
इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस क्या मतलब फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन, मतलब लोगों के घर में एक टैप वाटर का कनेक्शन लग जाए, उसके लिए अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, अपनी हेल्प करना चाहता है फाइनेंशियली, तो इसके थ्रू वो कर सकता है। इसी वजह से ये एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। तो याद रखना, अगर जल जीवन मिशन की बात की जा रही है तो ये हर घर में टैप वाटर का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, इसलिए ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था और अभी इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेटलैंड्स ऑफ इंडिया के कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। आई रिपीट, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, ना कि एप्लीकेशन, जो कि लॉन्च किया गया श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ठीक है, ये एक पोर्टल है जिसकी अगर हम एड्रेस देखें तो वो है indiawetlands.in। ये वेटलैंड्स ऑफ इंडिया एक पोर्टल है जो कि श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, गांधी जयंती के दिन, इसको जो कि 2 अक्टूबर को आती है, उस दिन ये एक पोर्टल को रिलीज करा गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोर्टल है जो कि सिंगल पॉइंट है जहां पे हम सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेटलैंड्स हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया का अभी पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट टू वेल्थ। अब हम देख रहे हैं कि हम जो वेस्ट क्रिएट करते हैं बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है, हर घर से कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है, एंड अब पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो उस वेस्ट को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, साइंटिफिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कि अब हम देख रहे हैं कई इनिशिएटिव आते हैं कि जैसे पहले प्लास्टिक हमें पता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो अब प्लास्टिक की जगह पे हम क्या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करते हैं, जैसे बैम्बू से बनी स्ट्रॉज को हम यूज करते हैं। पहले हम देखते थे जो हमारी चम्मच आती थी, जो हम प्लेट जैसे कोई फास्ट फूड खाते हैं या खाते थे, तो उसमें प्लास्टिक की प्लेट देते थे और प्लास्टिक की चम्मच देते थे। लेकिन अब कई जगह पे हम ये देख रहे हैं, इनिशिएटिव लिया जाता है कि प्लास्टिक के स्पून ना यूज करके हम लकड़ी की स्पून यूज करें और पेपर के हम वहां पे प्लेट्स प्रोवाइड करें। तो ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है कि ये जो हमारा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं हम वो खुद भी रिसाइकल हो जाए। अगर हम प्लास्टिक को देखें तो वो सालों सालों तक रिसाइकल नहीं होता, वो वैसा का ही वैसा रहता है, वो एकदम नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें और यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल चीज है, जिसको नेचर खुद से, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खुद से उसको डाइजेस्ट कर दे। तो इसी की वजह से एक वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। याद रखना, वेब पोर्टल है टू फाइंड सॉल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम। आइए देखें इसके बारे में। टेकिंग फॉरवर्ड स्वच्छ भारत एंड उन्नत भारत मिशन, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल जिसका नाम रखा गया वेस्ट टू वेल्थ। दिस वाज लॉन्च्ड टू ब्रिंग together technology providers, government stakeholders, urban local bodies and users on the platform to seek solutions for the waste problem of the country. It will enable collaborations for sustainable development through a circular economy and community participation. मतलब एक इकोनॉमी का बहुत हेल्प रहेगा इसमें कि सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करें, कोई अलग अलग काम ना करें, एज वेल एज कम्युनिटी मतलब हम आम नागरिक, हम लोगों का भी उसमें सहयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देखें, द वेस्ट टू वेल्थ मिशन गेव इंपॉर्टेंस टू साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट to build a zero landfill and zero waste nation. The mission is one of the 9 scientific missions जो कि प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के 9 मिशन में से ये एक मिशन रहेगा। अगर हम इनकी एडवाइजरी काउंसिल के 9 मिशंस की बात करें तो वो है नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्वांटम फ्रंटियर, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज के बारे में क्योंकि हम देखते हैं कि कहते हैं ना कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली और रहना खाना और खाना कपड़े बदल जाते हैं सब लोगों के। ठीक है, कि जो कपड़े पहनेंगे हर 10 किलोमीटर बाद कुछ और कपड़े का कल्चर है, खाने पीने का कुछ और है, बोली कुछ और है सब लोगों की। तो वो एक ईज बन जाए, किसी को प्रॉब्लम ना हो कम्युनिकेशन में, इसलिए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोसाइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड अग्नि क्या है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन। तो ये 9 साइंटिफिक या फिर आप कह सकते हैं ये 9 साइंटिफिक मिशन है प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के। ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा डाटा ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड द प्रोजेक्ट्स टेकन अप बाय द मिशन, ट्रैक द प्रोसेस ऑफ ईच प्रोजेक्ट, होस्ट अपकमिंग चैलेंजेस एंड जनरेट अवेयरनेस अमंग यूजर्स। अगर हम पीएसए के ऑफिस की बात करें तो ये 1999 में बना था और हेडक्वार्टर रहेगा इसका न्यू दिल्ली में। अगर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन है, प्रोफेसर के विजय राघवन जी।
नेक्स्ट, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इसके, फिश वाले से क्या समझते हैं, और ये एक ई फिश मार्केट है आपका। फिश वाले बहुत सिंपल नेम है तो याद भी रहेगा कि ई फिश मार्केट, वो भी असम में। क्या नाम है उसका? फिश वाले। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब या तो ये एप्लीकेशन होगी या फिर ये एक पोर्टल होगा। तो ये एक एप्लीकेशन है फिश वाले, जो कि असम के द्वारा लॉन्च की गई थी। मैंने आपको बताया है असम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट, आजकल वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टेट है ये एग्जामिनर की, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो असम के द्वारा फिश वाले, जो कि एक ई फिश मार्केट है, ये इंडिया की पहली ई फिश मार्केट लॉन्च की गई। मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सब कुछ ऑनलाइन है आपका। अब ऑनलाइन है तो इस पे क्या क्या हो सकता है, तो देखो ऑनलाइन है तो जैसे सेल परचेज होगा, आप यहां पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं कि हम, मेरे पास सो एंड सो प्रोडक्ट है। सो एंड सो प्रोडक्ट क्या होंगे, जैसे फिशिंग से रिलेटेड सब कुछ। यहां पे क्या है, ये ऐप फैसिलिटेट करेगी बायर्स एंड सेलर्स को टू प्लेस ऑर्डर्स, मतलब बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सेल फिश ऑनलाइन, क्वालिटी फिश सीड, फिश फीड, एक्वाकल्चर इक्विपमेंट, मेडिसिन, एक्वेरियम टैंक्स, ऑर्नामेंटल फिश इक्विपमेंट्स विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन द ऐप। अब इसमें ये चीजें तो मिलेंगी, जैसे आप इसे कह सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट है ये फिशेस का, फिश कल्चर का। फिर इसमें फ्रोजन फिश, ड्राई फिश, फिश पिकल्स, मछली का अचार, प्रोसेस फिश आइटम्स, ये सब कुछ इस ऐप के थ्रू बेचा और खरीदा जाएगा। ये बूस्ट देगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है कि फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च करा गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। फिर अगर असम की बात करें तो असम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर साइट कौन सी है, दीपोर बिल या फिर वाइस वर्सा। दीपोर बिल एक रामसर साइट है जो कि किस स्टेट में लोकेटेड है, वो है असम में। फिर यहां से 3 रिवर जाती हैं, ब्रह्मपुत्र, बरक और इरिल। और डांस की बात करें तो बिहू, झूमर और बागुरुम्बा, ये 3 डांस है आपके असम के। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलके माय व्यापार, ये एक रिटेल सेगमेंट्स के लिए लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन रहेगी। क्या नाम है इसका? माय व्यापार। अब माय व्यापार लॉन्च किसको 2 के द्वारा की गई? इजी टैप अलॉन्ग विद एक्सिस बैंक ने मिलके इस माय व्यापार को लॉन्च करा फॉर रिटेल सेगमेंट। अब ये रिटेल सेगमेंट है तो इससे क्या इंडिया को बेनिफिट होगा, मतलब किस लिए लॉन्च किया गया, देखते हैं। इजी टैप और एक्सिस बैंक, अब बैंक आ गया तो मतलब डेफिनेटली कुछ पेमेंट से रिलेटेड चीज होगी इस माय व्यापार में। तो देखिए ये रिटेल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आया है, और इससे क्या होगा, आप डिजिटल पेमेंट्स को ज्यादा एक प्रोसेस मिलेगा, मतलब ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप देखा था यूपीआई पेटीएम आया तो सब कुछ डिजिटल पेमेंट पे होने लग गया। आपका फोन पे से होता है, भीम यूपीआई यूज करते हैं, मेनली यूपीआई से आपने डिजिटल पेमेंट्स को कितना ज्यादा बढ़ावा मिला। तो ऐसे ही एक ये नई सर्विस ऐप है माय व्यापार, रिटेल बिजनेस सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली उनको टारगेट करने के लिए। उनको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करें। तो उनको जैसे कैशबैक मिलता है आपको पेटीएम पे, आपको भीम यूपीआई फोन पे यूज करते हो तो कैशबैक मिलता है, तो सिमिलर चीज का ये एक सिस्टम बनाया गया है। माय व्यापार ऐप ये प्रोवाइड करेगा बिजनेसेस को विद अ सिंगल व्यू ऑफ ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन दैट कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनीवेयर। इट ऑफर्स अ फुल सूट ऑफ बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन, मतलब अभी खरीद लो पे बाद में कर दो, जैसे क्रेडिट कार्ड करते हैं आपके, ठीक है। ईएमआई फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करेगा। मल्टीलिंगुअल, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ये आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि एक जो वास्ट मेजॉरिटी एक बड़ी पॉपुलेशन है हमारे में, उसको कवर कर सकें। जैसे अब कोई हिंदी बोलता है लेकिन तमिल नहीं बोलता, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी नहीं बोलता, तो इन सब को टैकल किया जाए, इसलिए ये मल्टीलिंगुअल भी बनाई गई है। क्या नाम रहेगा ऐप का? माय व्यापार। किन के द्वारा कोलैब करके बनाई गई? इजी टैप और एक्सिस बैंक के साथ ये मिलके बनाई गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे माय पोर्ट ऐप की। पोर्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे जहाज वगैरह आपके आते हैं, शिप्स आते हैं, लैंड करते हैं, वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, आपका सारा काम चलता है। जैसे मान लो सी वेज से आप रिलेटेड वो पोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी शिपिंग मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, आई रिपीट, शिपिंग मिनिस्टर श्री सर्बानंदन सोनोवाल जी के द्वारा अभी एक माय पोर्ट ऐप को लॉन्च किया गया फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशन। अब पोर्ट पे ऑपरेशंस क्या क्या होंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो कितने वहां पे वेसल्स हैं आपकी, पोर्ट हॉलीडेज कब आती हैं,
क्या टैरिफ लगते हैं, बिल्स क्या है, कितने कंटेनर्स का क्या स्टेटस है, किस कंटेनर में क्या है, कौन सा शिप कितने बजे आएगा, क्या कंटेनर कितने बजे आएगा, किस कंटेनर को किस शिप में लोड करके कहां पे डिलीवर करनी है, किस दिन हमारी छुट्टी रहेगी, कहां पे टैक्स लगेगा या कहां पे अलग से हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, सारी प्रोसेसेस, सारे रूल्स को इस माई पोर्ट ऐप पर डाला गया। ठीक है, ये माई पोर्ट ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि टारगेट करेगी पोर्ट यूजर्स को टू प्रोवाइड वेरियस पोर्ट सर्विसेज इन कोलकाता। कोलकाता कहां पे है? वेस्ट बंगाल। स्टेट पूछ लें कि ये माई पोर्ट ऐप कहां यूज किया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में इसको यूज करा जाएगा। एम क्या रहेगा? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इजी एक्सेस टू पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आप इस बात की, यही तो बात हो गई आपकी माई पोर्ट ऐप की। अगर हम बात करें हल्दिया पोर्ट पर अभी एक सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया गया। ये क्या करेगा? 1 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी को जनरेट करेगा। ठीक है, 1 मेगावाट सोलर प्लांट इन हल्दिया को इसको जनरेट करेगा। इसका क्या होगा? और फिर ये 14 लाख किलोवाट एनर्जी को जनरेट करेगा पर ईयर, 1 मेगावाट सोलर प्लांट। अब इससे क्या होगा? 70 लाख रुपए पर सालाना इसकी कीमत बचेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें अलग से जनरेट नहीं, यूज नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर में ही अगर सोलर पैनल लग जाए तो आप बिजली थोड़ी किसी बोर्ड से लोगे, जो मुझे आपकी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एनर्जी। आप अपनी जो सोलर पैनल लगाए उसी एनर्जी को कंज्यूम करोगे। उससे क्या होगा? आपका बिजली का खर्चा पड़ेगा, बचेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन उससे क्या आपका फ्यूचर में जो बिजली का खर्चा आप हर महीने देते हैं, बढ़ बढ़ के एक्स्ट्रा देते हैं, वो बच जाएगा। तो सिमिलरली 70 लाख रुपए हम सालाना बचा सकते हैं इस सोलर प्लांट को हमने जो हल्दिया पोर्ट पे इन्वेस्ट करा है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वस्थ हरियाणा। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, स्वस्थ मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो और किस स्टेट गवर्नमेंट का? हरियाणा का। तो हरियाणा की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा स्वस्थ हरियाणा ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा गया। तो स्वच्छ हरियाणा का काम क्या रहेगा? अगर देखें, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी के द्वारा स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन, याद रखना मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया। अब हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से क्या था कि लोगों को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, कहीं पे भीड़ में नहीं जाना, आपको अवॉइड करना है कि क्राउडेड प्लेस पे जाना या क्राउड को इकट्ठा होने से अवॉइड करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब जैसे आप देखते हैं किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक पे आप जाते हैं, किसी डॉक्टर से अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो क्या है, वहां पे भीड़ लग जाती है। और ओपीडीज में आप देखते हैं, ओपीडी होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप देखते हैं कि वहां पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, वहां पे वेट करते रहते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कोविड से ऐसे ही कोविड फैलेगा, अगर कोविड की फिर से इन्फेक्टेड कोई वहां पे उस रूम में है तो वो सबको इन्फेक्ट कर देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने सोचा कि एक पोर्टल बनाते, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं स्वस्थ हरियाणा के नाम से, जिसपे आप किसी भी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां पे आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड डाल लें, आपको किसी की अपॉइंटमेंट चाहिए किसी डॉक्टर की, आप उस हॉस्पिटल में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के ऑप्शन पे जाके, वहां पे उस डॉक्टर का ओपीडी ऑप्शन पे जाके वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे इस डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक तो भीड़ नहीं लगेगी, लोगों को मतलब काफी एक सुविधा ही है कि जैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट, पहले आप कुछ खरीदने जाते थे आपको दुकान पे जाना पड़ता था, अब क्या है कि आप ऑनलाइन भी अपने कपड़े मंगा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी है या नहीं? तो सिमिलरली हेल्थ सेक्टर में हेल्थ के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि आप घर बैठे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड जब आपका नंबर आने वाला होगा आप तब वहां पे जाके अपॉइंटमेंट अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्वस्थ हरियाणा, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। पेशेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं देमसेल्फ एट एनी सिविल हॉस्पिटल as the government is consistently working to contain the COVID-19। कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, फैले ना, लोग बचे रहें, इसलिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया। फीचर्स हैं, इट अलाउज द पेशेंट टू रजिस्टर इन एडवांस अलॉन्ग विद डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स, एक्सेस देयर पास्ट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स एंड विजिट टू एनी हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड ओपीडी ऑफ देयर चॉइस। समझे? तो ये क्या है? स्वस्थ हरियाणा लॉन्च किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये मोबाइल एप्लीकेशन है या पोर्टल? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा उनकी ई गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एजेंसी के द्वारा ई मुनेत्रम इसको लॉन्च किनके द्वारा किया गया? चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो देखो इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये ई मुनेत्रम है क्या। चलो पहले देख ही लेते हैं। ई मुनेत्रम, ये जैसे आपके स्टेट में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई आपको मॉल बना रहा है, या फिर आप समझ ले कोई हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, उसकी एग्रीमेंट डेट्स, स्टार्ट कब हुआ वो प्रोजेक्ट,
उस पर कितनी लागत लगेगी, उस प्रोजेक्ट पे कितना काम हो चुका है, इन सब को एक मंथली बेसिस पे उनका लोकेशन, उनके डाटा, सब कुछ एक मंथली बेसिस पे एक तरीके से अपलोड करना एंड अपडेट करते रहना। इसीलिए ये ई मोनेट्रम एक लॉन्च किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये क्या रहेगा, आपका एक पोर्टल रहेगा। ई मोनेट्रम की एक बात याद रखिएगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके स्टेट में चल रहे हैं उससे रिलेटेड ये आपका उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि सिटीजन्स उससे अपडेटेड रहें, पहली चीज। दूसरी चीज, एक है आईटी ननबन, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे क्या है कि जो भी हम पॉलिसीज बनाएंगे, ऑल्सो कंसेप्चुलाइज एंड इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म एंड नेम्ड आईटी ननबन, मतलब आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हम प्रोजेक्ट्स लाएंगे, आगे पॉलिसीज बनाएंगे, सर्विस हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड ये आईटी ननबन, ये भी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की। तो ई मोनेट्रम आप समझ गए क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए उससे रिलेटेड डिटेल्स, उससे रिलेटेड स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, उसकी लागत कहाँ पे बना, उसका जो प्रोसेस अपडेटेड करते रहना, फोटोज डालते रहना, लोगों को अवेयर कराते रहना, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। अभी रिसेंटली दो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन ये प्राइवेट पोर्टल है अभी। क्यों? क्योंकि सरकार ने बोला कि आप प्राइवेट कंपनीज को, जो आईटी एंड आईटीईएस कंपनीज हैं, इनको बोला कि आप आइए और इसमें रिलेटेड जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, प्लानिंग है और जो पॉलिसी मेकिंग रहेगी, आप उसको आके हमें अवेयर कराइए, हमारी हेल्प कीजिए इसको बेटर बनाने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ई मोनेट्रम स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ऑफ तमिलनाडु का है। सीएम ऑफ चीफ तमिलनाडु एमके स्टालिन जी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। और आईटी ननबन भी याद रखना, ये भी किसका है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई कॉप मोबाइल ऐप की। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा एक डिक्लेयर किया गया कि जो मोस्ट अवेटेड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम था, उसका प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गो लाइव का वो है जेके ई कॉप। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन, सबसे पहली चीज याद रखना कि जेके ई कॉप ये मोबाइल एप्लीकेशन है या पोर्टल, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे मान लो आप एक क्लिक से अपने जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नंबर, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पैनिक बटन टू सेंड डिस्ट्रेस मैसेज, मतलब आप इजी हो, जैसे मान लो आप कहीं रात को जा रहे हैं एंड आप सेफ फील नहीं कर रहे, तो आप उस पैनिक बटन को दबा के आप देख रहे हैं कि आपके साथ कोई कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी हो सकती है, उसी की वजह से ये एक डिस्ट्रेस मैसेज भेज देगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को या नियरेस्ट चौकी या फिर जो भी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर होगा उसको, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं पब्लिक को चाहिए होते हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आपका पुलिस का, तो ये सारे आपके वहां पे इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जेके ई कॉप पे अवेलेबल होंगे। इससे पब्लिक कैन ऑल्सो एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ नेशनल हाईवे ऑन रियल टाइम बेसिस, ई क्राइम अवेयरनेस, कितना क्राइम है, सेफ्टी टिप्स फॉर टूरिस्ट, जो टूरिस्ट उस स्टेट में जाएंगे उसके लिए सेफ्टी टिप, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, यात्रा गाइडलाइन, सीनियर सिटीजन सेफ्टी एंड मैनी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी इस जेके ई कॉप मोबाइल एप्लीकेशन से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड सेफ्टी कनेक्ट की। फूड सेफ्टी कनेक्ट ये एक मोबाइल एप्लीकेशन, पहली चीज याद रखना, किसके द्वारा लॉन्च की गई, फसाई के द्वारा। सेकंड चीज, फसाई है क्या, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फसाई है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या नाम रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन का, फूड सेफ्टी कनेक्ट। इसका पर्पस क्या है कि ग्रांटिंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन टू फूड बिजनेसेस। अब देखो, जैसे मान लो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं अपना खुद का जूस बेचूंगा, तो आप जूस ऐसे आप अपने फ्रेंड्स को तो फ्री में दे सकते हैं, उनसे पैसे ले ले, लेकिन अगर आपको एक लार्ज स्केल पे बेचना है, आप एक बड़े ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। उससे पहले आपको चेक कराना पड़ेगा कि क्या हम जो बेच रहे हैं वो ठीक है, उसमें केमिकल नहीं है, क्या वो लोगों के लिए हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारे मार्क आपको, सारे लाइसेंस दिए जाएंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको फसाई बोलते हैं, उनके द्वारा। तो उन्हीं के लिए एक ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाए कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो आपका काम पहले लाइनों में लग के, भीड़ में लग के आपका
लाइसेंस को लेना होता था, वो अब आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई कुरकुरे खरीदे, आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये फेक है, ये प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है जो कुरकुरे ब्रांड होता है, तो आप उसको देख सकते हैं, आप उससे वहां पे स्कैन करके आप उस एप्लीकेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि क्या ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं, क्या इनको हमारा फसाई का लाइसेंस मिला है या नहीं। तो ये सारी चीजें एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगी आपकी जनरल लोगों को। जिस ये मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प करेगी हॉकर्स को, वेंडर्स को एंड स्टार्टअप्स टू अप्लाई फॉर द फसाई फास्ट रजिस्ट्रेशन। ऐप विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फैक्ट्स प्रोवाइड करेगी ऑन द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड अदर कंपाइलेंस फॉर द फूड businesses. It can be used as a mechanism for consumers to easily verify FSSAI license or registration on any food packet. All right. Hello friends. Through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics. Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives. Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.